السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو محبت کرنے والوں کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ فجر کے بعد وہ تلاوت کر رہی تھی جب دروازے پر دستک کے بعد سائل نے آواز لگائی۔ وہ قرآن پاک بند کرتے ہوئے اٹھی اور پیسے لے کر دروازے کی طرف بڑھی۔ پیسے پکڑتے ہوئے اس شخص نے اس کی انگلیوں کو چھوا تو اسے جیسے کرنٹ لگا۔ تیزی سے ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے وہ درستی سے بولی، گھٹیا آدمی، تم بھیک کے نہیں جوتوں کے لائق ہو۔ اگر دوبارہ میرے گھر کے سامنے صدا لگائی نا تو سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ کیا ہوا بی بی؟ ڈھٹائی سے دانت نکالتا وہ بولا، دفع ہو یہاں سے، نظر مت آنا آج کے بعد۔ دروازہ پٹک کر وہ تخت پہ بیٹھ گئی اور ترچھی نظروں سے قرآن کی طرف دیکھا۔ اللہ جی، میں شکوہ نہیں کر رہی، بس یوں ہی کہہ رہی ہوں آپ سے، ماں بابا میں سے کسی ایک کو تو ہمارے ساتھ رہنے دیتے نا، شاید تب زندگی اتنی مشکل نہ لگتی۔ لوگ مفت کا مال سمجھ کر ہاتھ صاف کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ کب تک میں اپنی اور ان کی حفاظت کروں؟ نم آنکھیں کمرے کے دروازے کو چھو کر پلٹ آئیں جہاں زمل اور زیان بے فکری کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے بیگز شیلف پر رکھے اور گہری پرتھکن سانس لیتے ہوئے وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ فجر کے بعد سے وہ مسلسل کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا، لیکن کسی نے اسے کھانے کو نہیں پوچھا تھا۔ اس نے خود ہی فریج سے کھانا نکال کے گرم کیا اور ابھی پہلا نوالا اس کے ہاتھ میں تھا جب سامیہ کچن میں داخل ہوئی۔ تم ابھی تک کھانا کھا رہے ہو حاشر؟ بھول گئے ہمیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے؟ میری فلائٹ مس کروانے کا ارادہ ہے کیا؟ جلدی ختم کرو پلیز، میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا لان میں۔ یہ کہہ کر وہ موبائل پر کسی سے بات کرتے باہر نکل گئی۔ اللہ جی، میں تو ہمیشہ انسانوں کا محتاج نہ ہونے کی دعا کرتا تھا، اور آپ نے مجھے تنہا کر کے ان کے در پہ ڈال دیا کہ لو جیسا چاہے سلوک کرو اس کے ساتھ۔ بچپن سے ماں کی ممتا سے محروم رہا اور پھر باپ کی شفقت بھی چھین لی آپ نے۔ کم از کم ان کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رزق چاہے کم تھا، لیکن محبت اور عزت تو تھی نا۔ بے دلی سے نوالے منہ میں ڈالتے ہوئے وہ اللہ سے شکوے کر رہا تھا۔ تم لوگ ابھی تک گئے نہیں؟ مومانی کی آواز پر وہ رکا۔ بس جا رہا ہوں مومانی، بھوک لگی تھی تو سوچا کچھ کھا لوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جلدی واپس آنا، مجھے پارلر بھی جانا ہے، وہ نخوت سے بولی۔ جی بہتر مومانی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کھاتا تو ایسے ہے جیسے راشن اس کا باپ ڈلوا کر جاتا ہے، مومانی بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے بارہا گنے ہوئے پیسوں کو ایک بار پھر سے گنا اور سامان کی لسٹ کے ساتھ بیگ میں رکھا، گھر کو تالا لگایا اور روڈ پر بس کے انتظار میں کھڑی ہو گئی جب دو آدمی غیر محسوس طریقے سے اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ الرٹ ہو کر تھوڑا آگے ہو گئی۔ ارے گھبرا کیوں رہی ہو شہزادی، ہم کوئی بھوت تھوڑی ہیں؟ خباثت سے بولتا وہ آدمی اس سے زہر لگا۔ میں بھوتوں سے نہیں، کتوں سے گھبراتی ہوں جو صرف بھونکتے ہی نہیں کاٹ بھی لیتے ہیں، بہادری سے چبا چبا کر بولی، لیکن اپنی پشت پر رینگتے پسینے سے وہ واقف تھی۔ تیکھی ہے بہت۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر وہ ہنسے تو اس کا ضبط جواب دے گیا، اتنی تیکھی کافی ہے یا اور چاہیے؟ بیگ سے پیپر سپرے نکال کے وہ مڑی اور پھر نوزل سے انگلی ہٹانا بھول گئی۔ وہ دونوں گالیاں بکتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر ہاتھ مار رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ حاشر نے بائک اس کے نزدیک روکی۔ گھر چلو بتاتی ہوں۔ وہ پیدل چل پڑی اور وہ بائک گھسیٹتے اس کے پیچھے، کیونکہ جانتا تھا وہ اس کے پیچھے نہیں بیٹھے گی۔ ارے حاشر میاں، کافی دنوں بعد دیکھا تمہیں۔ مولوی صاحب نے آواز لگائی تو وہ رکا۔ آپ چلیں، میں آتا ہوں، زرتاش سے کہہ کر وہ مڑا، جس نے سامنے بالکونی میں کھڑی نصرت آپا کی عجیب نظروں کو اندیکھا کیا اور اندر مڑ گئی۔ حاشر مہینے بعد چکر لگاتا تھا اور اکثر دروازے سے ہی کام پوچھ کر چلا جاتا تھا، مگر محلے والوں کے بہتان اسے سننا پڑتے تھے۔ وہ تنگ آ چکی تھی اس زندگی سے، ہر کام کے لیے اسے خود خوار ہونا پڑتا تھا۔ السلام علیکم مولوی صاحب، بس وقت ہی نہیں ملا، آج چھٹی تھی تو سوچا چکر لگا لوں۔ بائک دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے وہ بولا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، کل مسجد آنا، ضروری بات کرنی ہے تم سے بیٹا، کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں مگر تم نظر ہی نہیں آئے۔
जी जी मौलवी साहब, मैं कल हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है फिर, कल मिलते हैं मियाँ। वो कहकर आगे बढ़ गए तो वो पुरसोच नज़रों से उन्हें जाते देखता रहा। दस्तक के लिए उसने हाथ उठाया ही था जब मामू की कॉल आ गई। जल्दी घर पहुंचने का हुक्म देकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया तो वो गहरी सांस लेता वहीं से पलट गया। जरताश इशा के बाद जायनमाज पर ही बैठी थी जब दरवाजे से आहिस्ता से दस्तक हुई। 11 बज रहे थे। उसका दिल बेहंगम अंदाज में धड़का। कौन है? वो दरवाजे से चंद कदम दूर ही रुक गई। दस्तक फिर हुई। कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं? दहशत से उसकी आवाज कांप रही थी। बाहर खामोशी छा गई। वो दरवाजे के करीब हुई तो 2 आदमियों की सरगोशियां सुनाई थीं। उसने हिम्मत की और दीवार के पास पड़ी टूटी ईंटें उठाकर दीवार के पार फेंक मारी। अब दूर जाते कदमों की आवाज पर वो वहीं ठहर गई। अल्लाह जी, मैं क्या करूं, किसको बताऊं? आपके सिवा कोई मेरा नहीं है। आप मेरी इज्जत की हिफाजत करें, आप मेरे साथ रहें अल्लाह मियाँ जी। वो जमीन पर झुकी सी सकती हुई एक ही बात दोहरा रही थी। रात आंखों में कट गई। रोने से आंखें मतरूम और रत जगह से सुर्ख हो रही थीं। आपको क्या हुआ है, बताएं ना आप भी। जिमल बार बार उसके चेहरे को बेचैनी से देखती पूछ बैठी। कुछ नहीं हुआ जिमल, तबीयत ठीक नहीं। चलें मेडिसिन लेकर आते हैं। जियान नाश्ता छोड़कर उठ खड़ा हुआ तो उसे बेसाख्ता उस पर प्यार आया। अरे मेरी जान, मैं ठीक हूँ, टैबलेट ली है, तुम दोनों के आने तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आप हमारी बात बिल्कुल नहीं मानती आपी। वो मुंह फुलाकर बैग लेने कमरे में चला गया। उसे मनाने के लिए वो उठी थी जब दस्तक हुई। वो फिर लरस गई। पूछ कर खोलना। जियान को पीछे से आवाज लगाई। हाशिर भाई, आप कितने दिनों बाद आए हैं? हम दोनों कब से इंतजार कर रहे थे आपका। जियान और जिमल दोनों उससे लिपट गए। आज की शाम तुम दोनों के नाम। चलो, तुम लोगों को देर हो रही है ना। वो दोनों हंसते हुए निकल गए तो वो दरवाजा बंद करके जरताश की तरफ आया। आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है भाई? कल रात, कांपती आवाज और भीगी आंखों से वो बिना उसे देखे सब बता गई। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया था जरताश? कैसे बुलाती? पहले ही लोग तुम्हारे आने को गलत नजरों से देखते हैं। आधी रात को आते तो ये फरिश्ता सिर्फ लोग उस बेहयाई को कैसे देखते। वो तलखी से बोली तो वो खामोशी से तख्त पर बैठ गया। फजर के बाद मौलवी साहब ने भी यही कहा मुझसे कि लोग बातें कर रहे हैं हम दोनों के बारे में। मेरे यहाँ आने से आपका किरदार भी मशकूक हो रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं। वो रुका तो जरताश जो हैरत से उसे सुन रही थी बेचैनी से बोली, क्या कहा है मौलवी साहब ने? कह रहे थे आपसे निकाह कर लूं। वो उसे देखते हुए बोला। वो चंद लम्हे सर झुकाए खड़ी रही, फिर बोली, मुझे मंजूर है। मैं डर गई हूँ हाशिर कल के बाद से। मैं अब नहीं रह सकती तन्हा। कब तक अपनी और इन दोनों की हिफाजत करूंगी? मुझे सहारा चाहिए और साथ भी। पर मेरे पास घर नहीं है जरताश। बाबा के घर पर चचा ने कब्जा कर लिया है और जहाँ रहता हूँ वहाँ मेरी हैसियत नौकर जैसी है। इसकी फिक्र मत करो तुम, हम यहीं रहेंगे इसी घर में। लोग तो बहुत बातें। अरे लोगों की फिक्र मत करो तुम, उनका काम है बातें बनाना। मुझे आज ही निकाह करना है, तुम यहीं रहोगे हमारे पास। उसकी बात काट कर वो बोली, तौबा लड़की, इतनी बेताबी। वो हंसा तो वो खौमखा शर्मिंदा हुई। सच कहूँ तो मैं डर गई हूँ हाशिर। दीवार तो कोई भी आसानी से फलांग सकता है। अगर आज तुम ना आते तो मैं शायद खाला की तरफ चली जाती। इस घर में तन्हा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती अब मैं। वो संजीदगी से बोली, ठीक है, आप परेशान मत हो। मैं मामू से बात करके निकाह के इंतजामात करके आता हूँ। वो तो खुश होंगे कि बोझ उतरेगा उनके सर से। दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए हाशिर बोला, बोझ तो लड़कियों का होता है हाशिर, जिसको सर से उतारा जाता है। नहीं जरताश, बोझ उनका होता है जिन्हें दिल कबूल ना करे। वो मुझे ख्वामखा की जिम्मेदारी समझते हैं जो उनके गले पड़ गई है। बोझ मोहताज लोगों का होता है। बोझ उनको समझा जाता है जिनका। अच्छा बस कर दो हाशिर, मैंने कुछ खाया नहीं है, अभी तो ये सब हजम नहीं हो रहा। तुम जाओ प्लीज जल्दी से। हाशिर की उदासी महसूस करते हुए वो उसकी बात काट कर तेज तेज बोली और दरवाज़ा खोल दिया। जा रहा हूँ लेकिन वापस आने के लिए। वो मुस्कुराकर दरवाज़ा पार कर गया।
मामू, मैं जरताश से शादी कर रहा हूँ। भाग भाग कर जाता था वहाँ। मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको कि कोई चक्कर चल रहा है इसका। इसके धदियाल वाले चालाक लोग हैं। देखो कैसे लड़की ने फंसा लिया इसे। मोमानी ने तंजिया अंदाज में कहा तो मामू ने उसे तेज नजरों से घूरा। पूछ रहे हो या तुम बता रहे हो मियाँ? बता रहा हूँ मामू, पर वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। मैंने यतीम मस्कीन लोगों को पालने का ठेका नहीं ले रखा। घर और नौकरी ढूंढ लो, फिर शादी कर लेना। मामू बड़े तल्ख लहजे में कहते हुए सिगरेट सुलगाने लगे। आप फिक्र न करें मामू, जरी भी यहाँ नहीं आना चाहती। मैं उसके साथ ही रहूंगा और नौकरी भी मिल जाएगी जल्द ही मुझे। सामान लेने आया था बस यहाँ से। आप आएंगे शाम को निकाह में तो हमें अच्छा लगेगा। नरमी से कहता हुआ हाशिर कमरे से निकल गया। देखा आपने कितना तेज निकला है ये। आप खौम-ख्वाह से मासूम समझते थे और पाले मुफ्त खोरे को। ये सिला दिया है इसने। मोमानी की आवाज ने कमरे तक उसका पीछा किया, मगर आज उसे फर्क नहीं पड़ा। वाह कजन, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तो यूं ही तुम्हें बेवकूफ समझती रही। लड़की और घर मिल गया और 2 बच्चे भी मुफ्त में। हाशिर ने सामिया को देखा और बिना कुछ कहे दरवाजा पार कर गया। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया था। जरताश ने चाय बनाई और छत पर आ गई। हाशिर सामने देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ट्रे दीवार पर रखकर वो दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। किसको सोचकर मुस्कुरा रहे हो इतना? है कोई बहुत खास, बहुत प्यारी। मैं तो कभी तुम्हें प्यारी नहीं लगी। तुम तो अच्छी हो ना। सही है, तुम मर्दों को महबूबाएं ही प्यारी लगती हैं, बीवियां नहीं। वो मुंह फुलाकर बोली। आप जेलस हो रही हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं आप जेलस। देखें जरा, मुझे तो स्मेल भी आ रही है जेलसी की। उसकी तरफ झुककर वो गहरी सांस लेते हुए हंसा। एवी बस कुछ भी। उसने हंसी छुपाने को कप उठाकर मुंह से लगा लिया। आपको पता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जरताश, जो आप मुझे मिली हैं। वाकई? हाँ, मैं इजहार के मामले में निकम्मा हूँ। आपको बता नहीं सकता कितनी खूबसूरत हैं आप, कितनी अहम है मेरे लिए। आपके साथ हंसता हूँ तो जिंदगी मुकम्मल लगती है। जब से आप मिली हैं, अल्लाह से शिकवे करना भूल गया हूँ। जरताश तो चाय पीना भूल गई। चंद लम्हे उसे देखने के बाद उसने नजरें डूबते सूरज पर जमा दी। हाशिर, तुम्हारे साथ ने मुझे मुकम्मल कर दिया है। तुम मेरी जात का वो गुमशुदा हिस्सा हो जिसके बिना मैं अधूरी जिंदगी जी रही थी। सूरज से निगाहें हटाकर हाशिर की आंखों में देखते हुए बोली तो वो मुस्कुरा उठा। फिर हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर झूलती लट परे की और बोला, एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप बहुत गुस्ताख हो यार। शोहर को तुम कौन कहता है भला? वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। तुम्हारी वो कहती है, और इस तुम में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है तुम जान लो ना तो खुद कहोगे कि ए जाने बहार, तुम कहो मुझे बार बार, 1000 बार। वो खिलखिलाते हुए उसके कांधे पर सर टिका गई। जिंदगी हमेशा मुश्किल नहीं रहती, वक्त बदल जाता है, महरूमियां खत्म होने लगती हैं तो फिर खुशियां जन्म लेती हैं।